Hello, good morning, students. Today we are going to discuss our 10th class history lesson number 4. The name of the lesson is The Making of Global World. Here we would study how the world was made a global world. Dear students, you have already studied in economics about globalization. You know that globalization had emerged 50 years ago. But in economics, we studied that globalization in India came after 1991. Here, we would study about the trade, migration of people in search of work, the movement of money or capital, and many more things. Dear students, when there was no currency, at that time, Kodi or the seashell was used as a form of currency. Likewise, in ancient time, the travelers, the traders, priests, pilgrimage means tirthyatri, traveled from one place to another place in search of knowledge, opportunities, and spiritual fulfillment और आध्यात्मिक अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए या जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए जाते थे या एट दैट टाइम many countries were ruled by the rulers where hard punishments were given for the small crimes, so they also moved from one place to another place to escape the punishment. When these people moved from one place to another place, they carried with them goods, money, values, silk, ideas, skills, inventions, and even the germs and disease which affected the people very badly. Now we are going to discuss about the Silk Route. Sir, what were the Silk Route? Dear students, before the pre-modern world, there were the trade and cultural links between the different parts of the world. And these things, these relations were connected due to the Silk Routes. What were Silk Routes? Silk Routes were the routes which were connecting the Asian countries or the East countries to the West countries or the Asian countries to the European countries. The Silk routes were available both on the land as well as on the sea. यहाँ से इन सिल्क रूट से बेटा एशियन कंट्रीज से जैसे चाइनीज ब्लू पोट्री, टेक्सटाइल अर्थात कॉटन क्लॉथ, स्पाइसेस वगैरह जाते थे. इन रिटर्न यूरोपियन कंट्रीज से गोल्ड सिल्वर जैसे जो आइटम्स थे वो अदर कंट्रीज से एशियन कॉन्टिनेंट में आते थे. इस प्रकार देयर वर द ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन पीपल in hand. It means side by side. When there was trade, then there was the exchange of culture. Early Christian missionaries उसी रास्ते से, उसी रूट से एशिया में आए जिस रास्ते से पहले मुस्लिम्स आए थे. बेटा बुद्धिज्म और द बौद्ध रिलीजन डेवलप्ड इन या emerged in ईस्टर्न इंडिया and it spread in different directions of the Silk Route. Now we would study how the trade and cultural links were available. Here we would take example of food. We would take the example of spaghetti and potato. Food offers many examples of long distance, जो कि ये दर्शाता है कि ट्रेड के साथ कल्चरल एक्सचेंज भी था. ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स जब वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते थे तो वो जिस कंट्री से जाते थे और जिस कंट्री में जाते थे वहाँ पे न्यू क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस कर देते थे. आज भी आप पाओगे कुछ रेडी फूड स्टफ लाइक द मैगी, लाइक द नूडल्स, स्पैगेटी, पास्ता. ऐसा माना जाता है कि ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गए. इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है नूडल्स और मैगी ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना. चाइना से ये चीज़ें वेस्टर्न कंट्रीज में गई. स्पैगेटी है चाइना से वेस्टर्न कंट्रीज में गई या नूडल्स चाइना से वेस्ट कंट्रीज में गया जो कि स्पैगेटी है. लाइकवाइज अरब ट्रेडर्स 5th सेंचुरी में सिसिली जो टुडे इज ए पार्ट ऑफ इटली यहाँ से बेटा पास्ता लेकर गए. आज भी बहुत से ये फूड उस समय इंडिया और जापान में भी जाने जाते थे. इट मीन्स ये हम कह सकते हैं कि लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन था. लाइकवाइज
आज भी जो पोटैटो, सोयाबीन, ग्राउंड नट, मेज, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटोज, ये जो चीज़ें हैं ये 5 सेंचुरीज एगो हमारे इंडियन जो लोग थे, हमारे फोर फादर्स थे, एंसेस्टर्स थे, उनको नोन टू नहीं थे। ऐसा माना जाता है दीज केम टू यूरोप और एशिया में आए। जैसे यू नो दैट क्रिस्टोफर कोलंबस हु हैड डिस्कवर्ड अमेरिका, जिसने अमेरिका को खोज किया। हेयर वी वुड स्टडी अमेरिका, यहाँ हम पढ़ेंगे नॉट अमेरिकन कंट्री बट द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इनफैक्ट वास्तव में मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड्स, आज हमारे जो सामान्य भोजन है वो हमारे अमेरिकन इंडियन से यहाँ पे आए। कई बार जो क्रॉप थी वो सोर्स ऑफ लाइफ एंड डेथ भी बनी। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, आयरलैंड में, यूरोप में पोटैटो का इंट्रोडक्शन हुआ। पोटैटो में आप जानते हैं स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है, एनर्जी बहुत होती है और ये सस्ता था। यूरोप के गरीब लोग इसको अपनी डाइट में बढ़ा गए। सस्ता होने के कारण वो इसे अपनी डाइट में ज़्यादा यूज कर सकते थे। इससे उनका बेटर लाइफ स्टैंडर्ड हुआ, उनकी और जो लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ, उनकी एज बढ़ गई। बट जैसे ही आगे चल के एक बार मिड 1840s में आयरलैंड में एक पोटैटो फैमिन हुआ। उस पोटैटो फैमिन में आयरलैंड के बहुत सारे लोग मरे। इसमें दे भी रखा है कि द पोटैटो ऑफ आयरलैंड टुक प्लेस बिटवीन 1845 to 1849 और इन द मिड ऑफ 1840s नियरली 10 लाख पीपल डाइड इन आयरलैंड एंड मोर देन डबल, अर्थात 20 लाख के लगभग लोग आयरलैंड को छोड़कर अदर कंट्रीज में मूव कर गए। नेक्स्ट, यू नो दैट बिफोर डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, अमेरिका अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड से कटा हुआ था, डिस्कनेक्टेड था। बट फ्रॉम द 16th सेंचुरी, बट 16th सेंचुरी में अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लाइक द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका दोनों काउंट होंगे। इसकी वास्ट लैंड और अबेंडेंट क्रॉप्स और मिनरल्स, अर्थात यहाँ पे लैंड वाज मोर वाइल पॉपुलेशन वाज लेस। लैंड वाज फर्टाइल सो क्रॉप्स कुड बी ग्रोन एंड देयर वर ए लॉट ऑफ मिनरल्स वर अवेलेबल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड और विड्रॉल फ्रॉम माइनिंग्स। उसके लिए ट्रेड और लाइफ ही चेंज हो। बेटा प्रीशियस मेटल्स लाइक सिल्वर, जो कि आज के पेरू और मेक्सिको में निकलता है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन NTSC में भी आया है। मेक्सिको वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सिल्वर और चांदी प्रोड्यूस करता है। जैसे जैसे अमेरिका और की जो वेल्थ के बारे में यूरोप के यहाँ पे ये मैसेज गया, ऐसे ऐसे यहाँ के यूरोप के लोग अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सर्च पार्टीज लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल इल डोराडो। कल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज इल डोराडो, तो इल डोराडो वाज द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। ऐसी सोच लोगों में थी कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक पर्टिकुलर प्लेस इल डोराडो है जहाँ पे गोल्ड प्रोड्यूस होता है और इसको यूरोपियंस ने अचीव करने के लिए लंबी एक्सपीडिशन सर्च पार्टीज भेजी। लाइकवाइज डिजीज़, पोर्तुगीज और पुर्तगाल और स्पेनिश लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो अपना कॉलोनाइजेशन प्रोसेस को फॉलो किया, कॉलोनीज बनाई, उसके पीछे क्या कारण थे। यूरोपियंस ने अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो कॉलोनीज बनाई, जो कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल में किया अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, वो किसी सुपर पावर से नहीं किया, किसी बड़े वेपन से नहीं किया, ये केवल किसी मिलिट्री वेपन से नहीं किया, ये केवल स्मॉल पॉक्स नामक एक डिजीज़ के छोटे छोटे जम्स थे। अमेरिका के लोग जो बहुत लंबे समय से आइसोलेट थे, उनकी बॉडी में स्मॉल पॉक्स डिजीज़ के जो जम्स हैं उसके प्रति इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था। और जैसे ही ये लोग यहाँ पे पुर्तगाली और स्पेनिश यहाँ पे आए, इनके कुछ लोगों में ये स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ कैरी ऑन होकर आई और यहाँ पे एज ए वाइल्ड फायर, जंगली आग की तरह, फॉरेस्ट फायर की तरह फैल गई और अमेरिका के लोगों को बहुत सारों को मार दिया, मर गए। और इस प्रकार गांव के गांव खाली हो गए, सोसाइटी की पूरी कम्युनिटी की कम्युनिटी डेथ हुई और इन लोगों को फ़ायदा हुआ। अब देखिए, यदि वेपन्स होते, गन वगैरह होती तो कोई छीन सकता है, कोई आपसे ले सकता है, बट जो कोई हमला करने वाला व्यक्ति है उसके पास जम्स हैं, तो बताइए कैसे क्या करोगे आप। लाइकवाइज अंटिल द 19th सेंचुरी यूरोप में गरीबी और भूखमरी, पॉवर्टी और हंगर था, वो बहुत कॉमन था। सिटीज़ वर ओवर क्राउडेड, सिटीज़ में डिजीज़ बहुत ज़्यादा थी, धर्म के नाम पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते थे। जो कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात से एग्री नहीं था तो उसे पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, फांसी दे दी जाती थी। इसलिए
many people from European continent run away towards the American continent. और यहाँ पे they started to work as a plantation worker etc. Until 18th सेंचुरी तक इंडिया और चाइना वर्ल्ड में रिचेस्ट कंट्रीज थे. यहाँ पे बड़ा ही ट्रेड का बड़ा नेटवर्क था. बट 15th सेंचुरी से चाइना ने आइसोलेट कर लिया खुद को. चाइना के जो रूलर्स थे वो मानते थे कि फॉरेन ट्रेडर्स को यदि हम अलाउ करते हैं तो हमारी लोकल पॉलिटिक्स में ही इंटरफेयर करते हैं, इसलिए इन्होंने अपने को आइसोलेट कर लिया. लाइकवाइज इंडिया की भी कंडीशन हुई और इस प्रकार धीरे धीरे जो पहले ट्रेड का सेंटर ईस्ट की तरफ था, चाइना और इंडिया की तरफ था, वो टुवर्ड्स वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ मूव कर गया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द 19th सेंचुरी और द डिटेल्स बिटवीन 1815 टू 1914 और बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. डियर स्टूडेंट्स, इन 19th सेंचुरी the economic condition, political condition, social, cultural and technical factors इस प्रकार से शेप लेकर आए, इस प्रकार चेंजेस लेकर आए कि वर्ल्ड ही चेंज हो गया. इकोनॉमिस्ट ने, अर्थशास्त्रियों ने, इकोनॉमिस्ट ने 3 टाइप ऑफ फ्लोज को आइडेंटिफाई किया है. फर्स्ट वन इज द ट्रेड इन गुड्स, सेकेंड वन इज द ट्रेड इन गुड्स मीन्स स्पेशली द क्लॉथ एंड व्हीट. सेकेंड फ्लो वाज द फ्लो ऑफ लेबर, या second moment was the flow of labor, it means migration of people in search of employment, and third was the moment of capital for the short term investment and long term investment. Then a world economy takes place. Dear students, earlier the countries believed in producing the food grains sufficient for the population of country, बट जैसे जैसे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ फूड ग्रेन्स का कंजम्पशन बढ़ गया. बट अब लोग 19th सेंचुरी ब्रिटेन की स्टोरी लेते हैं हम. यहाँ के लोग ये मानते थे कि द कंट्री, इफ़ द कंट्री प्रोड्यूसेस द सफिशिएंट फूड ग्रेन्स, इट मीन्स द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल वुड बी लोअर एंड देयर वुड बी सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स. इसलिए यूरोप के कंट्रीज़ की टेंडेंसी बनी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस हो, अर्बनाइजेशन पे फोकस हो, तो एग्रीकल्चर पे फोकस ना हो. जैसे जैसे पॉपुलेशन ऑफ यूरोप इंक्रीज हुई, ब्रिटेन की भी इंक्रीज हुई. ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुआ, सिटीज़ इंक्रीज हुई, डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बढ़ गई, उससे प्राइसेस बढ़ गई. इसलिए ब्रिटेन के जो फार्मर्स थे, लैंडेड ग्रुप्स थे, उन्होंने ब्रिटेन की गवर्नमेंट पे दबाव डाला और ब्रिटेन के दबाव डाल के कहा कि अदर कंट्रीज से फूड ग्रेन्स का जो इम्पोर्ट होता वो बैन किया जाए. गवर्नमेंट ने उसको ऐसा कर दिया तो ब्रिटेन में प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स बढ़ गए. ये जो इम्पोर्ट को बैन किया, इट इज़ नोन एज कोर लॉज. अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये आए, फूड प्राइसेस बढ़ गए, इंडस्ट्रियलिस्ट और सिटी में रहने वाले लोग को ज़्यादा पेमेंट फॉर फूड ग्रेन्स पे करना पड़ा. इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला कि कोर लॉज को अबोलिश किया जाए. कोर लॉज बनाने के लिए फार्मर्स ने प्रेशर डाला, अबोलिश करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट और सिटी डेवलपर्स ने. Under the pressure of industrialists and city developers, government removed the core laws, scrap कर दिया, रिमूव कर दिया. ऐसा करते ही ब्रिटेन में इम्पोर्ट ऑफ फूड सस्ता हो गया इन कंपेरिजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड, जिसके कारण ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू कॉम्पीट विद इम्पोर्टेड फूड ग्रेन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. जिसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि फार्मर्स लेफ्ट देयर फील्ड्स अनकल्टिवेटेड. थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन वर थ्रोन आउट ऑफ वर्क. हजारों महिला पुरुष जब ये काम छोड़ दिया तो एग्रीकल्चर का, तो बेरोजगार हो गए, आउट ऑफ वर्क हो गए, एंड दे मूव टुवर्ड्स सिटीज़ और अदर कंट्रीज इन सर्च ऑफ जॉब. अब बेनिफिट्स क्या हुए? एज द फूड प्राइसेस फेल, कंजम्पशन ऑफ फूड राइजेज इन ब्रिटेन. ब्रिटेन में फूड्स का कंजम्पशन बढ़ गया. फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी जैसे जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ ब्रिटेन में होने लगी, लोगों की इनकम बढ़ने लगी, फूड ज़्यादा इंपोर्ट होने लगा इन सब के कारण. और इस फूड डिमांड को पूरा करने के लिए ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज मीन्स रसिया जैसे देश में, अमेरिका, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ब्रिटेन की इस फूड डिमांड को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट एरियाज वर क्लियर्ड एंड फूड ग्रेन्स वर ग्रोन. बट केवल लैंड फॉर एग्रीकल्चर क्लियर करने की बात नहीं होगी. इसके लिए एक्सपोर्ट के लिए आपको क्या चाहिए? रेलवेज की आवश्यकता थी, पोर्ट्स की आवश्यकता थी. इसलिए न्यू हार्बर्स वर डेवलप्ड. रेल और जो शिप्स थी उसको जो पुरानी थी उनको एक्सपेंड किया गया. सेकंड, जो लैंड कल्टीवेशन के अंडर में लानी थी वहाँ पे लोगों को
गांव के गांव सेटल करने थे, बिल्डिंग्स बनानी थी, इन सब के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट थी, मनी की रिक्वायरमेंट थी। मनी था वो कहाँ से आया? फाइनेंशियल सेंटर लंदन से आया, ब्रिटेन की। और लेबर थी वो कहाँ से आई? अमेरिकन कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में जो लेबर शॉर्टेज थी वो अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, जैसे यूरोप में से 50 मिलियन पीपल्स ने माइग्रेट किया जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में गए, अपने घरों को छोड़ा, काम की तलाश में गए और यहाँ पे काम था। थस बाई 1890, इस प्रकार 1890 का समय आते आते जो पहले कंट्रीज जो अपने डोमेस्टिक लेवल के लिए फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करते थे, वही फूड ग्रेन प्रोडक्शन वर्ल्ड लेवल के लिए होने लगा। अर्थात ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का शेप यहाँ पे हो गया। अब जो कॉम्प्लेक्स लेबर मोमेंट्स चेंज होने लगे, इसके कारण कैपिटल फ्लो बढ़ा। इकोलॉजी मीन्स आप देखते हैं लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वर कट डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू फील्ड्स, तो इकोलॉजी इफेक्ट हुआ। अब आप देखोगे इन सब चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी की भी रिक्वायरमेंट थी। नाउ फूड ग्रेन्स वर नॉट प्रोड्यूस्ड इन द नियर बाई विलेज और टाउन, या टाउन के लिए नियर बाई विलेज से नहीं आ रहा था। अब जो फूड ग्रेन्स थे दे वर कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज बाई क्रॉसिंग द थाउजेंड्स ऑफ मील डिस्टेंस। अब जो फार्मर्स थे वो पहले क्या था, अपने लोकल लेवल के प्रोडक्शन था, स्मॉल फील्ड्स थे, ओवन लैंड थी, खुद की ज़मीन होती थी। बट अब जो बड़े बड़े खेत के ऊपर प्रोडक्शन होने लगा, जिसके ऊपर जो फार्मर्स थे जो टिलिंग वर्क करते थे, फार्मिंग का वर्क करते थे, वो केवल हायर करने लगे और उनके पास केवल उनको सेलेक्टेड सैलरी मिलती थी। उस फील्ड के प्रोडक्शन के ऊपर उनके पास कोई अधिकार नहीं था। पहले कुछ वर्षों पहले, एक जनरेशन पहले, जो पहले फॉरेस्ट एरिया होता था अब वो एग्रीकल्चरल लैंड हो गया। रेलवेज के ऊपर वर्कर्स की डिमांड बढ़ी जो इसी पर्पज़ के लिए बने थे। शिप्स के ऊपर लोगों की डिमांड बढ़ी जॉब के लिए, जिनको बहुत कम वेजेस मिलते थे। कुछ ऐसे ही सडन चेंजेस इंडिया में भी आए। पंजाब की बातें करते हैं जहाँ पे कैनाल कॉलोनी कहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया में भी इरिगेशनल कैनाल डेवलप किए, अर्थात इरिगेशनल सिस्टम को डेवलप किया। पंजाब का हिस्सा, पंजाब का वो क्षेत्र जो सेमी एरिड था, जहाँ पे डेजर्ट्स थे, जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती थी, उस जगह को बेटा फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट किया गया। व्हीट और कॉटन उस एरिया पे ग्रो किया गया ताकि वो व्हीट और कॉटन कुड बी एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन। इसके लिए नहरें निकाली गई। इस प्रकार की जो जगह बनाई गई उन सबको कैनाल कॉलोनीज कहा गया। What were canal colonies? The areas irrigated by the new canals were called the canal colonies. और इसमें पंजाब के अदर पार्ट से पीजेंट्स को लाके रखा गया। ये तो एग्जाम्पल पंजाब का है। इसी प्रकार के जो अदर एग्जाम्पल्स हों कॉटन और व्हीट के हैं, उसके अलावा अदर क्रॉप्स के भी इसी प्रकार की स्टोरी कहते हैं। कॉटन के बारे में है, रबड़ के बारे में। इस प्रकार आप देखेंगे डिफरेंट एरियाज गोट द स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ ए डिफरेंट कमोडिटी। इस प्रकार 1820 से 1914 इट मीन्स नेक्स्ट 100 ईयर्स में एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था 1820 में जो प्रोडक्शन था वो 1914 में 25 to 40 टाइम्स, पता इट मीन्स 25 से 40 गुना बढ़ गए। अब जो ट्रेड होता था उसमें से 60% इंडिया से प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते थे, प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स होते थे। नाउ वी वुड स्टडी अबाउट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। फूड में टेक्नोलॉजी क्या क्या रोल था, आइए हम देखते हैं इस भोजन में टेक्नोलॉजी ने रोल क्या प्ले किया। तो रेलवेज, स्टीम शिप्स, टेलीग्राफ्स ने बड़ा रोल प्ले किया। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। रेलवे के कारण बेटा फूड की जो डिमांड थी वो पूरी हुई। फूड जो बहुत जल्दी ख़राब होता है, जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, जो चीज़ें थी उसको बड़ी तेज़ी से मिली। इस प्रकार फास्टर रेलवेज आए, लाइटर वैगन्स मीन्स मालगाड़ी के डब्बे। इसी प्रकार लार्जर शिप्स आए जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस गुड्स को भेजने में बड़ी मदद करते थे। एंड नेक्स्ट रोल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटेड शिप्स। रेफ्रिजरेटेड शिप्स से पहले जब मीट के लिए जो एनिमल्स होते थे, मांस के लिए जो एनिमल्स होते थे, वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट टू यूरोपियन कॉन्टिनेंट में अलाइव भेजे जाते थे, जिंदा भेजे जाते थे। जब वो शिप में जिंदा जाते थे तो बेटा देयर वाज एक्स्ट्रा डेंजर ऑफ डेथ, देयर वाज डेंजर ऑफ लूजिंग द वेट बिकॉज लंबी सी वोएज, सी जर्नी होती थी। इस प्रकार मीट लग्जरियस थिंग थी और गरीब लोगों की पहुंच से बाहर था। बट जैसे ही रेफ्रिजरेटेड शिप्स आई, ये पेरिसेबल थिंग्स, मीट जैसी चीज़ें, मिल्क जैसी चीज़ें, बटर जैसी चीज़ें, इन चीज़ों को लॉन्ग डिस्टेंस क्रॉस कराया गया और जहाँ से चलते थे जैसे पशु,
एनिमल्स उसको वहीं पे काट दिया जाता था, मीट में कन्वर्ट कर दिया जाता था और स्टार्टिंग पॉइंट पे और पैकिंग करके रेफ्रिजरेटेड शिप से एज ए इसको फ्रोजन मीट भेजा जाता था। इससे बेटा न तो वेट लूजिंग की प्रॉब्लम, न डेथ, न इल, न ट्रांसपोर्ट चार्जेज ज़्यादा, जिसके कारण मीट के रेट्स डिक्रीज हो गए, जिसके कारण गरीब लोग भी अपनी जो पहले ब्रेड और पोटैटो जो मोनोटोनी एक जैसी निरस सा खाना था उसमें वैरायटी ऐड कर सकते थे। इससे यूरोप के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ और इसने उनके कॉलोनाइजेशन प्रोसेस, इंपेरियलिज्म प्रोसेस को मदद किया। नाउ वी वुड स्टडी अबाउट लेट 19th सेंचुरी कॉलोनिज्म। बेटा इन लेट 19th सेंचुरी कॉलोनिज्म मीन्स द पावरफुल कंट्रीज ऑक्युपाइड द other countries for getting their raw materials and selling the finished goods in their market. In 19th century, late 19th century, ट्रेड भी डेवलप हुआ, मार्केट भी डेवलप हुआ। बट ट्रेड और मार्केट ये तो प्रोस्पेरिटी थी, इसके साथ साथ इसकी डार्कर साइड्स भी थी। जैसे डार्कर साइड्स में क्या था, लोग अपनी फ्रीडम्स को लूज कर गए, बड़ा इकोनॉमिक, सोशल, इकोलॉजिकल चेंजेज आए जो कि बड़े ही नेगेटिव इफेक्ट्स थे। आगे चल के आप देखोगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को ऑक्यूपाई करने के लिए यूरोपियन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ में बड़ी होड़ लग गई। वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज प्राप्त करने के लिए, लैंड जिसके ऊपर प्लांटेशन और एग्रीकल्चर किया जा सके उसको प्राप्त करने के लिए उनमें होड़ लग गई और आपस में फाइट होने लगी। इसलिए 1885 में बिग यूरोपियन पावर्स असम्बल्ड इन जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, जहाँ पे अफ्रीका को डिवाइड अप किया गया। और आप देखते हैं आज अफ्रीका के कई कंट्रीज, जैसे आप इस पर्टिकुलर मैप में फाइंड आउट करोगे कि जैसे आप जहाँ पे फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रीका, लीबिया वगैरह लिखा है, इन कंट्रीज़ की बाउंड्री ऐसे है जैसे किसी स्केल के द्वारा, किसी रूलर के द्वारा मार्क कर रखी हो। आगे चल के ब्रिटेन और फ्रांस ने लेट 19th सेंचुरी में अपनी जो कॉलोनीज थी उसकी संख्या बड़ी बढ़ाई। आगे चल के बेल्जियम और जर्मनी भी न्यू कॉलोनियल पावर्स बने, अमेरिका भी आगे चल के एक न्यू कॉलोनियल पावर बनी। सर हेनरी मोर्टन स्टैनली, ये क्या था, इसने एक पर्टिकुलर मैगजीन थी जिसका जर्नलिस्ट था न्यूयॉर्क हेराल्ड, इसके बारे में आप देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट एंड वी वुड स्टडी द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।